Hello everyone, I, Namrata Rathod, Assistant Professor of Department of Pharmaceutical Chemistry in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we discuss about the aromatic acid. What is aromatic acid? Aromatic acids are the derivative of aromatic hydrocarbon in which the one or more hydrogen atom having be replaced by the carboxylic group. The carboxylic group may be directly attached to the aromatic nucleus and benzene ring. It is known as benzoic acid or its derivative. The next point is sometimes carboxylic group is present in the side chain of aromatic nucleus. For example, it is an example of benzoic acid. It is a benzene ring or aromatic ring. Aromatic ring, and this group is carboxylic group. Carboxylic group is attached with aromatic ring or benzene ring. It is known as benzoic acid. Second example is again benzene ring attached with carboxylic group and methyl group. So it is known as toluic acid or methyl benzoic acid. The third example is it is a structure of phenyl acetic acid. These are the example of aromatic acid. Next is type of aromatic acid. Aromatic acid are compound containing a carboxylic functional group COOH group. There are the two types. First is aromatic acid in which the carboxylic group directly attached to the benzene ring or other aromatic ring. For an example, benzoic acid. The second one is aromatic acid in which the COOH group attach the side chain of the aromatic ring. For example, phenyl acetic acid. These are the type of aromatic acid. Next question is why are they called acid? Because carboxylic acid are acidic because of the hydrogen in the COOH group. So recall that acid are the compound which yield H plus ion in solution. Carboxylic acid in a solution dissociated into the following ions. It is a structure of C double bond O and R or OH group. It is a structure of carboxylic acid react with water. Reaction is reversible reaction. The C again COO group attached with carbon and loss of one hydrogen atom. So it is a negative charge on oxygen. It is known as carboxylate ion and there are 3 hydrogen. So this compound is H3O positive. It is known as acid. Next point is nomenclature. Nomenclature are divided in two types. First is common name, second is IUPAC name. First, talk about first common system. Common system, according to this system, the aromatic acids are generally known as benzoic acid. It is a structure of para-chlorobenzoic acid. In this structure, the chlorine is present. It is a para position. So it is called as para-chloro. And these ring are benzoic acid because it is a benzene. This ring is benzene and this functional group is carboxylic. And this one chloro group. So it is a benzoic ring and chlorine group
it is on para position. So it is known as para-chlorobenzoic acid. And some aromatic acid have special name. For example, this is the structure of methyl benzoic acid. Methyl benzoic acid, it is a benzoic acid ring at CH3 group attached on meta position. So it is known as metatoluic acid or methyl. This group is methyl group. So it is known as methyl benzoic acid. There are many rules for common system. The first rule is all common name of acid end in ic acid. For example, benzoic. So ic acid. Second, position of substituent on the chain are labeled with Greek letter. For example, it is a chain-like structure and labeled with Greek letter. So it is a functional group. उसके बाद जो सेकंड कार्बन होगा वो हमारे कौन से होंगे? ग्रीक लेटर होंगे. तो ये जितने भी इसके बाद कार्बन अटैच होंगे वो हमारे ग्रीक लेटर फॉर्म में होंगे. द फर्स्ट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा and epsilon. All have the Greek letter. So first example is, it is a structure of अल्फा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड. इस स्ट्रक्चर में हमारे पास COOH एक फंक्शनल ग्रुप की तरह है एंड इसके बाद जो इस फंक्शनल ग्रुप के बाद 3 कार्बन एटम्स और है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब यहाँ पर हम इन कार्बन एटम को ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप के बाद, तो ये वाला क्या होगा? अल्फा, बीटा एंड गामा. और क्लोरीन ग्रुप जो हमारा अटैच है वो किस पोजीशन पे अटैच है? अल्फा पोजीशन पे. सो क्लोरो 1 2 3 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? एक वर्ड से एंड होता है. ब्यूटेन, ब्यूटेरिक एसिड. सो अल्फा क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेरिक. और ये जो ग्रुप है कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एसिड, अल्फा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड. सेकेंड एग्जांपल है हमारा बीटा फेनाइल कैप्रोलिक एसिड. इसमें भी अगेन यही है कि ये हमारा एक ग्रुप है, कार्बन चेन है जिसके साथ एक क्या अटैच है? फेनाइल रिंग अटैच है. इस फेनाइल ग्रुप, ये हमारा जो फेनाइल ग्रुप है, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH है. फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा एंड बीटा. फेनाइल रिंग किस ग्रुप पे अटैच है? बीटा पोजीशन पे. सो बीटा फेनाइल, इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है? कैप्रोइक एसिड. सो इट इज नोन एज बीटा फेनाइल कैप्रोइक एसिड. थर्ड स्ट्रक्चर इज बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. All are the example of common system nomenclature. Next point is nomenclature of IUPAC system. The simplest aromatic ring, benzoic acid, the other aromatic acid are named as derivative of benzoic acid. The salt of aromatic acid are named by writing the name of cation followed by the name of the acid in which the ending ic acid has been replaced by ed. In this structure, the first structure is phenylpropanoic acid. Second is para-methyl benzoic acid and sodium benzoate. The next point is rule of IUPAC system. The first rule is carboxylic acid named by replacing E of the corresponding alkane name with OIC acid. The second point is COOH carbon atom is number C1. Third point is compound containing multiple COOH group at
डाई और ट्राई to the suffix oic acid. First example is propanoic acid. इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो COOH ग्रुप कितने हैं? सिर्फ एक ही है, जो कि कौन सा है? ये रहा, एक है। तो हमने क्या बोला है, जब COOH ग्रुप कार्बन एटम इज नंबर फर्स्ट कार्बन, तो यहाँ पर हम इसको क्या दे रहे हैं? फर्स्ट नंबर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जहां ई है उसको रिप्लेस करके हम क्या लिख रहे हैं? ओइक। तो यहाँ पे क्या है? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। तो ये जो ई है उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ लिखा ओइक एसिड। अब है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है? 1 2 3, मीथेन इथेन प्रोपेन। सो इट इज नोन एज प्रोपेन। प्रोपेन ई की जगह हमने क्या लिया है? इस एसिड का नाम ओइक एसिड। तो हुआ क्या? प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड एग्जांपल है, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4। ये हमारा कार्बन नहीं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? COOH फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा COOH के बाद जो कार्बन है 4 मेथाइल पेंटेनोइक एसिड। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है? हमारे पास 5 प्रेजेंट है। और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा किसे काउंट करना है? COOH ओइक एसिड को। तो ये हमारा नंबर 1 कहलाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट नंबर पे हमारा है बेंजोइक ओइक। फर्स्ट नंबर पे हमारा ओइक एसिड है। एंड फिर फोर्थ पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। और नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है? 5। तो इसके लिए क्या हम लिखेंगे? पेंटेन। अगेन ई की जगह हम ओइक। तो क्या होगा? 4 मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे 4 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 5 पेंट, और ये कौन सा है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड। तो क्या होगा? 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर कितने हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 2 है, एक ये है और एक 2। तो 2 है तो इसके लिए हम क्या डाई भी यूज कर सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पर यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन इथेन। क्या है ये? इथेन। तो ई अगेन आ रहा है, इसकी जगह हम 2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर 2 ग्रुप है OH। तो यहाँ पर ई की जगह क्या आ जाएगा? ओइक। इथेन डाई, नंबर ऑफ ये COH ग्रुप कितने हैं? 2 है। तो क्या हो जाएगा? इथेन डाई ओइक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। सेकेंड नंबर वाले एग्जांपल में कितने हैं हमारे पास? कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और नंबर ऑफ COOH ग्रुप कितने हैं? 1 2 है, तो इसके लिए डाई। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? ई की जगह ओइक एसिड। तो यहाँ हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हुआ? प्रोपेन डाई ओइक एसिड या मैलोनिक एसिड। थर्ड एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास? 4 5 और 6। 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सेन। तो हेक्सेन, नंबर ऑफ COH कंपाउंड कितने हैं? 2। तो डाई ओइक, ई की जगह ई के रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख रहे हैं? ओइक एसिड। तो क्या हो गया? हेक्सेन डाई ओइक एसिड या एडिपिक एसिड। Fifth point is cycloalkanes bound to COOH are named as cycloalkane carboxylic acid. The next point is aromatic acid are named as benzoic acid. For example, it is a aromatic ring. The first position is carboxylic group. Carboxylic acid, it is on the first position, first, second, third, fourth, fifth and sixth. फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप है लीजिए? COOH ग्रुप है लीजिए। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा COOH ग्रुप है लीजिए। एंड थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच है। और ये स्ट्रक्चर
ब्रोमो, रिंग कौन सी हमारी साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो साइक्लोहेक्सेन, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। द सेकंड एग्जांपल इज 1 साइक्लोपेंटेन ई कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर हमारा अगेन क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है इस रिंग में। ये कैसी है रिंग, साइक्लिक रिंग है और नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 5 कार्बन है तो क्या आएगा पेंटेन इन, सी डबल बॉन्ड, अगर इन केस यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं इन, तो क्या हुआ साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड। द नेक्स्ट एग्जांपल इज बेंजोइक एसिड, अगेन बेंजीन रिंग अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और 2 या मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बिकॉज सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर क्या अटैच है हाइड्रोक्सी ग्रुप, या मेटा पोजीशन पे हमारा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसलिए हम यहाँ पे से क्या बोल रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है अगेन ये बेंजोइक एसिड रिंग है जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 नंबर ऑफ कार्बन 6 से बेंजोइक एसिड है की रिंग है, जिसमें थर्ड पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप है। हमें ये इसे हम या तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं या मेटा अर्थो एंड पैरा अर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ IUPAC सिस्टम।